A very, very good evening, ladies. I hope you guys are all doing good. A digital hi to everyone. And welcome to Forever Star India, your first step. This is how you begin from the scratch. So, सबसे पहले तो congratulations on completing your auditions successfully. It was an immense pleasure to have you on board, all of you, with your interesting introductions and interactions that we got to have. Thank you so much for all that you shared, but now there is no looking back. आपने अपना पहला कदम ले लिया है, and now it's our responsibility to make sure that every step from here on is worth it and taken care of responsibly. So I would request you all, for whosoever it's practically possible, to start your videos, please. अपने कैमरास ऑन कर लीजिए और अपने माइक्स म्यूट पे रखिए. And we can have some smiles across the screen. आप लोग बहुत अच्छे लग रहे हो सब लोग. And this is just the शुरुआत. This is how we begin our process, and the most awaited training sessions have started. This is your first one and the most basic one to ensure that आपको आगे किसी भी training session में कोई problem ना आए. So talking about the platform, Forever Star India, like we discussed in the auditions as well, is not just about the crown. I know the final destination is, and आप लोगों ने already अपने आप को crowns के साथ imagine कर लिया होगा. But this platform is not just about the crown. We are a community of women who are like-minded, talented, and passionate. तो अगर थोड़ी बहुत भी insecurity auditions के बाद बची है, कि मुझे पहले कोई experience नहीं है, how will I do it? This is not the space for it. You can leave it in the back seat. ये आपका टाइम है टू शाइन ब्राइट एंड टू मेक श्योर कि आप अपने लिए एक नई पहचान बना सको, लोग आपको आपके काम, आपके पर्सनालिटी से जानें. And that is where the team is going to help you. तो बिल्कुल भी मैटर नहीं करता, आपकी एज, आपकी हाइट, and already you are all are inspiring women, because this is the batch of misses जो prove करती हैं that age is just a number and we are here to shine bright no matter what. हमारे लिए barriers matter नहीं करते हैं. The only thing that matters is how passionate you are, और यही चीज exactly आप लोगों ने prove करके अपना auditions clear किए हैं. Because this is what the first thing that I mentioned during the auditions, that we are not looking for how much you know already. सिखा तो हम देंगे ही during the journey. The only thing that we need out of you guys is sincere cooperation and complete assistance and understanding towards the entire process. Because I'm sure coaching सबको similar मिलने वाली है, but आपकी self study, आपका individual direction towards each of these classes is going to make you a winner. So यही फर्क है आप सब में एक दूसरे से, because there is no comparison between how much you are performing as compared to someone else, but it's all about just you and your progress. तो किसी और से compete करने की बजाय ये समझना है कि आप खुद से compete कर रहे हो, और आज जैसे आप first session में हो, और जब आप after all your trainings are done and you are performing for talent rounds, वो growth कैसी होती है और उसमें आप कितना hard work डालते हो. That's the only thing that matters. And yes, the platform is a community जिसके season 2022 का चेहरा आप लोग बनने वाले हो, because in season 2021 we created history, a world record in fact, of crowning 300 plus winners from across the country. 300 winners एक ही platform पे crown किए गए to ensure visibility and credibility to any kind of person, woman, who of course has put in her heart and soul into the process. So taking just a second. Okay, I'm so sorry. I got a call in between. I had to take it. Anyways, talking about season 2021, we did create history. और इस साल आप लोग हमारे साथ एक नया रिकॉर्ड, एक नई हिस्ट्री क्रिएट करने वाले हो, बिकॉज आप 3 लेवल पे क्राउन होने वाले हो, सिटी, स्टेट एंड नेशनल. बिकॉज आई एम श्योर एक अंदर ही अंदर दिल में सपना होता है कि पहले मैं अपने शहर को रिप्रेजेंट करूं, then state को, and then you reach to the nationals. So that is how the process is going to be. Of course, we'll be refreshing it all over again as we go, move back and forth with it. So let's not delay the process
at all, let's just start with what the journey holds for you. सबसे पहली चीज that I would like to highlight in today's session is that soon we are going to launch our exclusive FCR app. Now, this Forever Star India application is going to be a one-stop platform for all your queries and for all your profile representations. So, इस एप्लीकेशन के थ्रू आपको पूरी दुनिया लाइव देख पाएगी अपने राउंड्स परफॉर्म करते हुए, अपना टैलेंट शोकेस करते हुए, एंड दैट्स अ ड्रीम इन इटसेल्फ. जीतना ना जीतना बहुत बात की बातें होती हैं, but you know, getting to showcase your talent on the right platform is a very very huge deal, because that is how networking works. Because I'm sure वो जो थोड़ा बहुत डर था, you know, कि कहीं ये fake तो नहीं है, is this a safe space, वो सब तो निकल गया होगा. Now we are all a family for that matter, because from here on a new journey starts altogether. Why do I say that? इस application के through आपको मौका मिलेगा to interact with the professionals from all across the country. These include, you know, all your trainers जिनके साथ आप training sessions लेने वाले हो, and you know, getting to know more of them, getting to understand more of their expertise. Similarly, you know, the idea remains that we'll be taking this forward step by step, where you will also get to showcase your profiles and talents directly to these trainers. Because दूसरी सोशल मीडिया एप्स पे क्या होता है, that there is so much that is happening that filter out करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि हमारी फील्ड से रेलेवेंट लोग कौन हैं. But when you are on a platform जिसमें सिर्फ verified members हैं, it becomes very easy for each one of you to understand that okay, I don't have to worry of what I'm displaying here, because it's a safe space and people here will notice what I'm showcasing. So ये कॉन्सेप्ट अभी थोड़ा शायद यू नो हमें लगे कि स्टेप बाय स्टेप समझ आने वाला, बिकॉज जैसे एक बार आपके पास एक्सेस आ जाएगा, you will get to understand more of it, but it's going to be a huge part of your entire process. So now let me just invite the two leading ladies, the co-trainer of today's session, Ms. Kirti Chaudhary, the director of Forever Star India, and Jaya Chauhan, who is also going to be the guiding light discussing the benefits of the platform. So without any more delay, इससे पहले कि आप लोग मेरी बातें सुन के पक जाओ, I would request the OG expert of the day, Kirti ma'am, to take over and talk about today's session. Kirti ma'am, welcome on board. Over to you. A very good evening, my lovely ladies. Thank you so much, Harry, for allowing me to talk. And congratulations that you have finally made it to the first training session of Forever Mrs. India 2022. I'm sure all of you are grateful that you have become a part of this platform. And even I am extremely excited to welcome you for today's training session. Now, what are we exactly going to learn in today's training session? Because further, 90% of our process is going to be virtual. Okay, so before I go ahead with the interaction, I would like to understand if you're comfortable in English, please give me a thumbs up. If you're more comfortable in Hindi, give me a thumbs down. So I'll keep my conversation. Okay. Okay. All right. Okay, so I guess we have 50% thumbs up and 50% thumbs down. So I'll keep the interaction in English and Hindi. I'll keep it in English as of now. Now, when I talk about the platform, that we have covered almost every state across the country, right? पूरे इंडिया से हम बहुत सारे registrations ले चुके हैं, बहुत सारे auditions हो चुके हैं. जैसा कि आपको पता है, पिछली बार हमने एक record create किया था. We crowned 300 women from across the country, and this time the number is going to be 700. We are going to crown 700 women from across the country, from different parts across the country. Now, ये जो इतना vast reach है, कैसे possible होता है? क्योंकि हम पूरा process, 90% जो process है वो virtual रखते हैं. Just give me a moment. So as I say, 90% जो हमारा process है वो virtual होने वाला है. What does that mean? Because हमारे process में बहुत सारे steps हैं, starting from your registration. I'm sure when you did your registration, you directly visited our website
और वहां से आपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट किया था। उसके बाद जब आपका ऑडिशन हुआ, दैट आल्सो हैपेंड ऑन जूम। उसके बाद आपकी ऑडिशन रिपोर्ट कार्ड आपको वर्चुअली भेजी गई, एंड ऑन दैट बेसिस यू कंप्लीटेड योर पार्टिसिपेशन प्रोसेस। इसके बाद जो आपकी ट्रेनिंग सेशन है और आपके ग्रूमिंग सेशन है, अगेन वी आर गोइंग टू कीप दीज वर्चुअल। नाउ जस्ट थिंक अबाउट इट, आपकी बहुत अच्छी ट्रेनिंग हुई है, आपकी बहुत अच्छी ग्रूमिंग हुई है, यू नो हाउ टू डू एन एप्ट मेकअप फॉर अ रैंप वॉक। आपको पता है मुझे रैंप वॉक के लिए पहनना क्या है, मुझे अपना हेयर स्टाइल कैसे रखना है, व्हाट काइंड ऑफ फुटवेयर और स्टिलेटोज आई शुड बी वेयरिंग। सो यू आर फुल्ली प्रिपेयर्ड फॉर योर टैलेंट राउंड्स व्हिच आर कमिंग फर्दर। लेकिन आपको ये नहीं पता कि मुझे वर्चुअली खुद को कैसे प्रेजेंट करना है, बिकॉज ऑफलाइन खुद को प्रेजेंट करना और वर्चुअली खुद को प्रेजेंट करना, देयर इज अ ह्यूज ह्यूज डिफरेंस इन दीज टू। ऑफलाइन में आपको पता होता है कि आप स्टेज पे आएंगे, द जूरी मेंबर्स आर सिटिंग अक्रॉस द स्टेज, आप अपनी परफॉर्मेंस देंगे और वो आपको पूरे तरीके से देख सकते हैं, राइट? लेकिन वर्चुअली अगर आप कंप्लीटली विजिबल नहीं हो, अगर आपका मेकअप अच्छे से नहीं दिख रहा है, अगर आपका जो बैकग्राउंड है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, all of this comes under one category, that is your virtual presence. That is why I say that the complete process of selection of Forever Mrs. India is 90%. So firstly, you need to understand that how can you efficiently improve your virtual presence here on screen. Now the steps, you know, we will start with registration, audition, then audition report card, participation. Training sessions आपकी once a week होंगी, but along with these training sessions, you will also be appearing for your talent rounds, right? About these talent rounds, we will be discussing in detail कि हर एक talent round में आपको किस basis पे judge किया जाएगा, right? Because when you appeared for audition, we told you that only and only if you are passionate about being here on this platform, you will be shortlisted. It does not matter whether you have an experience or you do not have an experience with respect to this industry. We will be selecting you purely on the basis of your passion. But now that we are preparing you, right, now that the image consultants are going to train you, they're going to help you that how can you present yourselves efficiently, आप कैसे खुद के बारे में बात कर सकते हैं एक क्लैरिटी के साथ। मेकअप कंसल्टेंट आपको बेसिक मेकअप सिखाएगा कि आप न्यूड मेकअप कैसे कर सकते हैं, if you want to, you know, dress up for a ramp walk, how you should be doing your makeup. A ramp walk expert is going to explain to you practically about the technicalities of a ramp walk. यानी कि gradually आपको बहुत सारी चीजें सिखाई जाएंगी, लेकिन हर एक ट्रेनिंग सेशन के बाद आपके टैलेंट राउंड्स होंगे जिसमें on the basis of your presentation, the way you're presenting your talent, the way you're dressed up, and how confident you are in your presentation skills, the jury members are going to judge you. At the end of these 3 talent rounds, which means you will be getting 3 chances to prove yourselves in तीनों talent rounds के बाद, we will be shortlisting city representatives. For instance, if you belong to Mumbai, Forever Mrs. India Mumbai, मुंबई से एक रनर अप भी सिलेक्ट होगा, मुंबई से सब टाइटल होल्डर्स भी सिलेक्ट होंगे, दिल्ली से भी सेम प्रोसेस होगा, यानी कि जितने भी सिटीज से आप यहाँ पे प्रेजेंट हैं, आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, we will be shortlisting winners, subtitle holders and the runner-ups. इन्हीं सिटी रिप्रेजेंटेटिव्स में से हम स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स का सिलेक्शन करेंगे, यानी कि यहाँ तक का ये कंप्लीट प्रोसेस वर्चुअल ही होने वाला है. Of course, towards the end, if you become a city winner or after that if you become a state winner, you will be coming to Jaipur at Hotel Marriott, where we will be organizing a magnificent event where you will be crowned as a celebrity. यानी कि ये इवेंट ऑफलाइन होने वाला है because we do not want to steal this moment from you, right? You have to act like a celebrity from day one because here the media is going to be there. Of course, the other winners are going to be there, and the trainers are going to help you in identifying your strengths and amplifying them. Now, as I've already mentioned, that in each of the talent rounds, you will be judged on the basis of various skills and the way you're presenting yourselves. Please, please, please do not compare yourselves with each other. आपको एक दूसरे से कोई comparison नहीं करना है. वो इतनी अच्छी रैंप वॉक कर रही है, उसने इतना अच्छा मेकअप किया है, उसके स्टेलेटोज इतने अच्छे लग रहे हैं, उसकी ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है. All of us are unique human beings, and we have to embrace that uniqueness. And trust me, Forever Star India is going to support you in embracing that uniqueness. We're not going to kill that uniqueness for you.
right? All right. And one more important thing, that the score for your talent rounds, because हर talent round में आपको jury members score करेंगे out of 10. लेकिन वो स्कोर आपको किसी से भी पूछना नहीं पड़ेगा कॉल करके, या अपने अकाउंट मैनेजर को भी आपको कॉल नहीं करना पड़ेगा. यू विल बी डायरेक्टली विजिटिंग योर प्रोफाइल. आई एम श्योर अब तक सबको क्लैरिटी आ गई होगी कि आपका एक आईडी एंड पासवर्ड है फॉरएवर स्टार इंडिया कम्युनिटी का, जहां पे अगर आप लॉग इन करते हैं तो आपकी सारी डिटेल्स वहां पे दिखाई देती हैं. तो आपका जो स्कोर है वो भी आपकी प्रोफाइल पे एज सुन एज योर टैलेंट राउंड इज डन, इट विल बी अपलोडेड देयर. तो आप वहां पे जाएंगे, अपना स्कोर चेक करेंगे एंड विल बी क्लियर कि मेरा परफॉर्मेंस ऐसा था, इसीलिए ये मेरा स्कोर है. तो तीनों टैलेंट राउंड्स का स्कोर वहां पे अपलोड होगा, और उसके बाद आपके पास इंफॉर्मेशन आएगी whether you have been selected further as a city representative or not. Now, I would request Harry to talk about these talent rounds in detail. थैंक यू सो मच कीर्ति मैम, थैंक यू. सो ये टैलेंट राउंड्स की डिस्क्रिप्शन जो है, इसको देख के अभी पैनिक नहीं करना है. दिस इज जस्ट अ स्टार्ट फॉर अस टू मेक यू अंडरस्टैंड ऑफ हाउ द प्रोसेस इज गोइंग टू बी. ये प्रेजेंटेशन आपके साथ शेयर भी कर दी जाएगी, और हर ट्रेनिंग सेशन में एज वी विल मूव फॉरवर्ड वी विल बी डिस्कसिंग देम इन प्रॉपर डिटेल. अभी सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहे हैं ताकि आपको एक आइडिया लग जाए और व्हाट द प्रेपरेशन नीड्स टू बी अबाउट. सबसे पहले तो लेट मी जस्ट ब्रेक द बबल हियर. अपने फ्लैट्स को, अपने स्नीकर्स को बाय बाय कहने का वक्त आ गया है. इट्स गोइंग टू बी ऑल अबाउट योर लवली हील्स नाउ. So there is no escape. इससे आप भाग नहीं पाओगे. This is something that I'm giving you an honest advice on. Stilettos are the way to go. No wedges, no block heels. अब तक जो भी escape था, only and only stilettos and pencil heels. That's what I mean. और pencil heels में minimum रहेगा आपका 3 inches, maximum 6 inches. So please make sure that you invest in a good pair of heels, which can be into 2 primary colors जो आपके हर आउटफिट के साथ जाए. It could be black or it could be a good shade of nude. I hope that is clear. कोई भी स्किन टोन कलर की शेड. और ये आगे से प्लेटफॉर्म हो सकती हैं, बट पीछे से it has to be stilettos. Minimum 3 inches से start कीजिए. You know, if you're not sure, you can borrow any of your friends' heels if you don't have any, and start with that, and then invest into one. Why do I say that? Yes, आपको रैंप वॉक की ट्रेनिंग दी जाएगी, बट वो ट्रेनर इसी पर्सपेक्टिव के साथ आएगा दैट आपको हील्स में एटलीस्ट चलना आता है. इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट. सो अगर मैं रियलिटी पोर्ट्रे करूं तो आप किचन में भी हील्स में जाइए. ट्रस्ट मी, इट विल हेल्प यू. आप गिरोगे, संभलोगे, बट दैट्स हाउ द जर्नी इज गोना बी, राइट, इवेंचुअली. ताकि जब आपका ट्रेनर ऑन बोर्ड आए, आपको बिगिनर लेवल पे भी वो टीच करे, तो बेसिक आपको हील्स में चलना आना चाहिए. बिकॉज हील्स में चलने में और हील्स में रैंप वॉक करने में बहुत टेक्निकलिटीज का डिफरेंस होता है, and that is where you need to be prepared. These are some pointers that you need to keep into mind. And when I say stilettos and pencil heels, it is a clear no-no for wedges or any kind of block heels. So I hope that is clear. अगर आपको reference चाहिए होगा तो please अपने account manager के touch में आ जाइएगा. We'll share some reference pictures of what kind of heels would go. ठीक है. बट अगर मैं बिल्कुल सिंपलेस्ट भाषा में कहूँ तो वो जो पेंसिल हील्स होती हैं प्रॉपर, मिनिमम 3 to maximum 6 inches. 3 से स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे 5 और 6 पे पहुंच जाइएगा, कोई इशू नहीं है. बट 3 से नीचे इट वोंट वर्क. Why do I say that? I do not mean to scare you. मुझे आपको डराना नहीं है, but this is the reality. और इससे कोई भी नहीं भाग पाएगा. And I want you guys to be very, very sure that you want to do this and seriously. और ये बेसिक चीजें हैं जो आपको कोई सिखाए उससे पहले आप खुद अपना कॉन्फिडेंस उसमें बिल्ड कीजिए, ताकि जब एक ट्रेनर ऑन बोर्ड आए, यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड ऑन फोकसिंग ऑन लर्निंग, रादर देन ये समझने में कि हील्स में कैसे चलना है, आप टेक्निकलिटीज पे फोकस कर पाओ. आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस ऑफ व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे, राइट? So let's talk about these talent rounds. Why am I emphasizing on these heels?
because हर राउंड में, हर एक राउंड में रैंप वॉक इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी क्रूशियल क्राइटेरिया. फर्स्ट रैंप वॉक आप लोगों ने की थी ऑडिशंस में, but that is not even 2% of what the actual ramp walk looks like. All right, so you have to be prepared that you take this very very seriously, because ramp walk is an inevitable part. In fact finale में भी आपकी कुटी और रैंप वॉक ही होगी, तो वो क्राउन पे फोकस जितना होगा उतना ही आपकी रैंप वॉक पे होगा. So that is something that you need to understand and incorporate into your regular life for that matter. So let's start with talent round one. Talking about talent round one, I would like to highlight few points. Dress code, dress up according to your personality. Of course, it can't be casual. Casuals तो अब भूल ही जाइए. कोविड में बहुत आपने टी शर्ट पजामा पहन लिया, बट अब अपने फैंसीएस्ट ऑफ क्लोथ्स बाहर निकाल लीजिए and put them here. Why do I say this? Because you are on a platform जहाँ पे आपकी अच्छा ड्रेसिंग सेंस को, अच्छा प्रेजेंटेशन को इम्पोर्टेंस दी जाएगी इवेंचुअली, एंड इट विल बी नोटेड एंड अप्रिशिएटेड. एंड आई एम नॉट पुटिंग अ ब्रैकेट और अ टर्म कि यही एक अच्छा ड्रेस सेंस होता है, यही एक टाइप का ड्रेस अच्छा होता है, बट इट हैज टू बी प्रेजेंटेबल ऑफ व्हाटएवर यू वांट टू पोर्ट्रे, because every time you come on screen you are being noticed. Aaj bhi the jury, the head team is noticing candidates. So that is why we say that keep your videos on, because this is your time. आप लोगों ने इसके लिए मेहनत की है and you are ready to invest your energy into something, so make sure you give your 100% into it, right? So dress up according to your personality. Of course, dress up your best basically. Talk about your aspirations. So एक क्वेश्चन जो हमने ऑडिशंस में एड्रेस किया था बहुत इंपॉर्टेंटली, वो था अबाउट व्हाई डू यू वांट टू विन द क्राउन. उसी क्वेश्चन को थोड़ी और क्लैरिटी के साथ आप एड्रेस करोगे टैलेंट राउंड वन में, लेकिन इस बार और भी ज्यादा फोकस के साथ. इट कांट बी एनीथिंग एंड एवरीथिंग कि ये मेरा सपना है, लेकिन ये आपका सपना क्यों है. देयर हैज टू बी अ पर्पस. व्हाट आफ्टर यू विन द क्राउन. So talk about your aspirations, give clarity as to how you see yourself into the future. आप अपने आप को क्राउन जीतने के बाद कहाँ देखते हो और क्या चाहते हो इस प्लेटफॉर्म से. That is something that you need to address. Secondly, highlight details about your idol in life, your inspiration. अपने आपकी जो भी इंस्पिरेशन रही हैं या रहे हैं इस फील्ड से रिलेटेड, उनके बारे में आपको बात करनी है. अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट चॉइस. प्लीज इसको कैजुअली मत लीजिएगा, बिकॉज ये टैलेंट राउंड 2 से भी रिलेटेड है. So it can be, any of these glamour women that we have. It can be Priyanka Chopra, Sushmita Sen, जिनको भी देख के आपके, मन में एक क्राउन का एस्पिरेशन ट्रिगर होता है या इंस्टिगेट होता है, उनके बारे में you have to talk. And it cannot be anything or everything. It needs to make sense, क्योंकि उसका पर्पस भी टैलेंट राउंड 2 से कनेक्टेड होगा. रैंप वॉक टुवर्ड्स द एंड. अगेन इसको आप कंप्लीट करोगे रैंप वॉक करते हुए, एंड एंड में जूरी के साथ इंटरैक्शन भी हर एक टैलेंट राउंड में होगा. सो आफ्टर योर परफॉर्मेंस इज डन, द जूरी हैज द लिबर्टी टू आस्क यू एनीथिंग, बिकॉज आपकी प्रेपरेशन है, आपका परफॉर्मेंस है. यू नीड टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड विद एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट कैन कम योर वे. ऑफ कोर्स इट वोंट बी अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग, बट इट हैज टू शो दैट यू आर मेंटली देयर एंड योर कॉन्फिडेंस शुड रिफ्लेक्ट. आपके जवाब में आपका कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए, चाहे इवन इफ इट्स नॉट पॉलिटिकली करेक्ट टू आंसर. सो आई होप दैट इज क्लियर. तो ये जूरी का जो इंटरैक्शन है और रैंप वॉक है, ये तीनों राउंड्स में कांस्टेंट रहेगा. सेकंड टैलेंट राउंड में शोकेस योर टैलेंट. अब शोकेस योर टैलेंट से हमारा मतलब है इट इज कनेक्टेड अगेन टू योर आइडल रिप्रेजेंटेशन. सो जिस भी आइडल इंस्पिरेशन इंस्पायरिंग फिगर के बारे में आप टैलेंट राउंड 1 में बात करेंगे, उन्हीं को आपको सेकंड टैलेंट राउंड में रिप्रेजेंट करना है. इट कैन बी एनी आइकॉनिक फिगर, एनी आइकॉनिक कैरेक्टर ऑफ देयर्स, जिनकी तरह यू हैव टू ड्रेस अप एंड योर मेकअप एंड ऑल शुड बी आल्सो अकॉर्डिंग टू दैट. इसको थोड़ा और डिस्क्रिप्शन में इफ आई कैन एक्सप्लेन, इट शुड बी ऑल अबाउट हाउ यू वांट टू पोर्ट्रे दैट कैरेक्टर, कि आपको उनके बारे में सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग पार्ट क्या लगता है या कौन सा फेज उनका. सो इट कैन बी एनी ऑफ दैट. तो इसमें जहाँ पे थोड़ा फ्री स्पेस आ जाता है ना कि आप कुछ भी कर सकते हो, इट बिकम्स इवन मोर डिफिकल्ट, बिकॉज यू हैव टू चूज समथिंग जो बहुत ही डिफरेंट हो, बहुत ही यूनिक हो. सो यू कैन स्टार्ट preparing for this and make sure that you stand out accordingly. Again, ramp walk towards the end of your performance, interaction with the jury members. And let's move to talent round 3, which I call the showstopper round.
because no matter you win or not, everybody deserves a queen moment जहाँ पे वो अपने best of best outfit में couture gown or any good dress that they wish to अपना ramp walk करें. And of course ये इससे पहले आपकी एक final level की ramp walk training होगी. So every training session will have beginner level, mediatory level and an advanced level. तो यहाँ तक आपकी training sessions complete हो चुके होंगे. एंड इसमें दो चीजों में आपका प्राइमरी जजमेंट होगा, बिकॉज ये आपका राउंड जो होगा ये प्राइमरीली आपके रैंप वॉक पे ही बेस्ड होगा. सो इसमें जो दो चीजें जज की जाएंगी, फर्स्ट योर मेकअप. सो अगेन इससे पहले आपको मेकअप आर्टिस्ट ट्रेन कर चुके होंगे, सो दिस शुड बी द बेस्ट ऑफ योर लुक्स दैट यू वांट टू पोर्ट्रे. सेकंड, अटायर एक्ट अकॉर्डिंग टू द रैंप वॉक, बिकॉज रैंप वॉक इज गोइंग टू बी द की फैक्टर जिस पे हम आपको इसमें जज करने वाले हैं. So you can be all about the crown and the glamour here, nothing else matters. And again, interaction with the jury members with respect to preparation for your round. So for whosoever is asking me in the chat box कि questions कैसे होंगे या interaction कैसा होगा, ये आपकी preparation के related ही questions होंगे. Why did you choose this or what do you think of this? अगर आप कोई statement दे रहे हो, उसी को ही क्रॉस क्वेश्चन करने का एक फॉर्मेट होता है. एंड ट्रस्ट मी, उसके लिए सिर्फ एक ही चीज रिक्वायर्ड होगी, योर मेंटल प्रेजेंस. बिकॉज आपने मेहनत की है, यू आर एन इंडिपेंडेंट पर्सन एंड देयर इज नो वे समवन एल्स कैन आंसर ऑन योर बिहाफ, ओनली यू कैन. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपने जो मेहनत की है उसको आप जवाब में फॉर्मुलेट करके ज्यूरी के सामने कैसे रखते हो. सो अभी बहुत सारी घबराहट दिख रही है मुझे स्क्रीन पे कि ये होगा कैसे, लेकिन ये हो जाएगा. आप ही लोग करोगे एंड ट्रस्ट मी, you will be surprised by yourself the way you will do it. And I'm sure that all of you going to do really really well and have your queen moments by the time we reach talent round 3, that आप लोग मुझे सिखा रहे होगे that this is how you do it. So it's going to be one inspiring time for all of us, the entire team of Forever Star India. And before you panic, हर talent round से पहले आपको train किया जाएगा. Just to clarify it once again, you will not be put into something very randomly, but I always say कोचिंग सबको सेम मिलती है, लेकिन विनर बनने के लिए सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है, अलग से बहुत मेहनत करनी पड़ती है. यही एक इंसान की स्पेशल क्वालिटी होती है. सो प्लीज मेक श्योर कि आप अपनी प्रेपरेशन, नाउ इतने टैलेंट राउंड की डिटेल जान के आप अगर इसको यहीं, दो चॉइसेस हैं, आप इसको यहीं छोड़ दें एंड wait for the trainings to start and everything and talent rounds to start, या फिर आप प्लान आउट करना शुरू करें कि मैं इसमें अपना बेस्ट कैसे देने वाली हूँ. what is something extra different that I can do. of course plans हमेशा बैकअप के साथ बनते हैं. you can create n number of plans, but you have to be smart about of how you want to portray yourself. 3 golden chances to prove yourself. And no filtration till the end. ऐसा नहीं है कि फर्स्ट राउंड में अगर आपने वीक परफॉर्म किया so you sit back कि अब तो there is no improvement. No, फर्स्ट राउंड एक वजह के लिए होता है. उसमें ऑफ कोर्स ऑडिशंस एक वजह के लिए थे, तभी अब आपका इम्प्रूवमेंट चार्ट प्लान होगा. तो तीनों राउंड्स आप दोगे, नो मैटर हाउ यू परफॉर्म इन एनी ऑफ द राउंड्स. And it is up to you how hopefully and how seriously you take it. अगर पहले राउंड में कुछ गड़बड़ हुआ है, make up for it in the second round, in the third round, only in your control. So I hope मैंने थोड़ी बहुत clarity दे दी हो. Again re-emphasizing, इन talent rounds के बारे में हम training sessions में फिर से बात करेंगे step by step in more detail. Okay, this presentation will be shared with you shortly and even the recording will be put up on YouTube. So now I would request the actual trainer to take over and begin with her part, Kirti ma'am. Kirti ma'am, over to you. All right. So now that all of you understand, at least you have a basic idea that what is there in store for you here, what are the talent rounds going to be like. 100% clarity आपको gradually आएगी जब हर एक ट्रेनिंग सेशन में आपको डिटेल में इन टैलेंट राउंड्स के बारे में बताया जाएगा. सो प्लीज डू नॉट पैनिक. धीरे धीरे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी. लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो आज हमारे लिए है वो है आपकी वर्चुअल प्रेजेंस. Why am I re-emphasizing it? Because I know in the auditions, I've seen you in the auditions. I've seen you, just looking somewhere else. The angle of your camera was not correct. The way you placed your camera was not correct, right? So there are a lot of things that need to be taken care of while, talking about virtual presence. So the first
And the most important part of your virtual presence is sustain your energy. आप किस एनर्जी लेवल पे खुद को अपनी ऑडियंस के सामने दिखाना चाहते हैं, राइट? जैसा कि मैंने बोला कि हम सब यूनिक हैं। हो सकता है कि आप बहुत ही कामली बात करते हैं अपने बारे में, आपकी परफॉर्मेंस भी बहुत काम है कि सामने वाला जो कैंडिडेट है वो आपको देख के बिल्कुल बैलेंस्ड फील करे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपके एनर्जी लेवल्स इतने हाई हैं कि वो आपकी वॉक में भी दिख रहे हैं, जब आप अपने बारे में बात कर रहे हैं तब भी दिख रहे हैं। यानी कि हर पार्टिसिपेंट का एक अलग एनर्जी लेवल होता है, लेकिन उस एनर्जी लेवल को सस्टेन, उसको मेंटेन करने के लिए वी हैव टू टेक इन द राइट न्यूट्रिशन। ये आपके लिए प्रेपरेशन है। यू नो, आई ऑलवेज टेल कि आप एक बनाना खा के आए, ड्राई फ्रूट्स खा के आए, और ऐसी कोई चीज खाएं जिससे कि आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलती हो बिफोर एवरी ट्रेनिंग सेशन एंड बिफोर एवरी टैलेंट राउंड। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये आपका 10-15 दिन में खत्म हो जाएगा। इट इज गोइंग टू टेक सम टाइम, एटलीस्ट 3 to 4 months का टाइम आपको लगेगा ये सारी चीजें डिटेल में सीखने में। तो क्यों ना हम ऐसा कुछ करें कि हमारे एनर्जी लेवल्स हमेशा मेंटेन रहें। इससे ग्रेजुअली क्या होगा, जब आप लास्ट में फिनाले में आएंगे, यू नो, बिकॉज ऑल ऑफ अस आर एक्चुअली बीइंग वेरी पॉजिटिव, हम सब यही सोच के आगे बढ़ेंगे कि हम अपनी सिटी को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो अगर आप अपनी सिटी को रिप्रेजेंट करते हैं और आप यहाँ पे जयपुर में आते हैं, 2 से 3 दिन आप यहाँ पे अगर रहते हैं, तो यहाँ पे आपको 4-4, 5-5 घंटों तक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रिहर्सल्स होंगी आपकी स्टेज पे। और वो आप कब कर पाएंगे, जब आपके एनर्जी लेवल्स मेंटेन्ड होंगे। सो टुडे ऑनवर्ड्स मेक श्योर दैट यू आर टेकिंग द राइट न्यूट्रिशन इन। न्यूट्रिशनिस्ट्स आएंगे जो आपको अप्रोप्रिएट तरीके से ट्रेन करेंगे, लेकिन आपकी तरफ से आप जितना कर सकते हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट डाल सकते हैं, वो आप आज से ही करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी भी टैलेंट राउंड में सिर्फ इसलिए प्रेजेंट नहीं कर पाए क्योंकि आपका एनर्जी लेवल लो था। होता है ना, व्हेन यू आर अ लिटिल नर्वस तो आपकी एनर्जी अपने आप लो हो जाती है। लेकिन अगर आपका एनर्जी लेवल बैलेंस्ड है तो आपकी नर्वसनेस ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। सो प्लीज प्लीज make sure what is it and how do you want to present yourselves, how do you want the audience to perceive you. The second most important part of your virtual presence is the stability of your camera. आपने जब दूसरे कैंडिडेट्स को भी ऑडिशन देते हुए देखा होगा, आपने देखा होगा दैट यू नो देयर कैमरा वाज मूविंग अ लॉट, जस्ट लाइक दिस। आप बात कर रहे हैं और आप ऐसे ऐसे उसके साथ मूव कर रहे हैं। ट्रस्ट मी, दैट इज एक्सट्रीमली डिस्ट्रैक्टिंग फॉर द ऑडियंस। अगर अभी मैं अपना स्क्रीन मूव कर रही हूँ तो आपके लिए वो कितना डिस्ट्रैक्टिंग है, मेरे कंटेंट से ज्यादा आप मेरी स्क्रीन की तरफ देखेंगे, राइट? सो डू यू वांट दैट ड्यूरिंग योर परफॉर्मेंस द जूरी मेंबर्स शुड बी डिस्ट्रैक्टेड? उनका पूरा ध्यान आपकी परफॉर्मेंस पे होना चाहिए। सो फॉर दैट मेक श्योर इफ यू यूजिंग अ फोन, तो आपका फोन आप किसी स्टेबल सरफेस पे रखें। यू कैन कीप इट ऑन अ टेबल, लेकिन अगर उसका लेवल बहुत नीचे लग रहा है, सो यू कैन यूज अ पाइल ऑफ बुक्स जस्ट लाइक आई हैव शोन हियर इन दिस पिक्चर। आप बुक्स के ऊपर उसे रख सकते हैं। यू कैन कीप अ हार्ड सरफेस, ठीक है? लेकिन आपका जो कैमरा है वो 101% स्टेबल होना चाहिए। और ये प्रेपरेशन आप अपने ट्रेनिंग सेशन और अपने टैलेंट राउंड से पहले ही कर लेंगे, नॉट ड्यूरिंग द सेशन। आप सेशन के टाइम ये नहीं करेंगे, आप सेशन से पहले ही ये प्रेपरेशन कर लेंगे। Now, along with the stability of your camera, what matters the most is your position on screen. Now, if I look at most of you, आपका screen या तो vertical होता है या फिर horizontal और portrait mode में होता है. So if you're logging in from a laptop, तो आप horizontal screen में दिखाई देंगे. अगर आप एक फोन से लॉग इन करते हैं तो आप वर्टिकल स्क्रीन में दिखाई देते हैं। दोनों ही सिचुएशंस में मेक श्योर दैट द टॉप ऑफ योर हेड, the distance between the top of your head and the top of your screen has to be in between 1 and 2 inches. 1 से 2 इंच के बीच में होना चाहिए, उससे ज्यादा या उससे कम नहीं होना चाहिए। If you want, you can try it right away. जैसे कि अगर मैं अभी अपनी स्क्रीन ऐसे कर लेती हूँ, मैंने 2 इंच से काफी ज्यादा गैप कर लिया है। सो हाउ डू यू थिंक आई एम लुकिंग? मैं कैसी लग रही हूँ आपको? डोंट यू थिंक इट्स लुकिंग अ लिटिल ऑड? और अगर मैं डिस्टेंस बिल्कुल ही कम कर देती हूँ तो मैं बहुत ज्यादा क्लोज आ जाती हूँ स्क्रीन के। बट इफ आई एम मेंटेनिंग दिस डिस्टेंस ऑफ 1 or 2 inches, it just looks more professional.
ठीक है, सिर्फ प्रोफेशनल लगता है, उससे इम्पैक्ट कुछ भी नहीं आने वाला है, लेकिन जब आप बात करेंगे अपने बारे में तो आपकी जो बॉडी लैंग्वेज होगी, आपके जो हैंड जेस्चर्स होंगे, वो क्लियरली विजिबल होंगे आपकी ऑडियंस को, जूरी मेंबर्स को, राइट? सो वंस यू हैव a balanced level of energy, your camera is stable and your position on screen. One more very important thing here, कि जैसे ही आप अपनी पोजीशन स्क्रीन पे इस तरीके से करते हैं कि ये गैप 2 इंचेस हो जाता है, you are also maintaining an eye contact with the camera, right? जब आप कभी कहीं से पढ़ के बोल रहे हैं या आप थोड़े से नर्वस है तो आप कहीं और देखते हैं, यू विल बी लुकिंग समवेयर एल्स, आप ऐसे बात करेंगे या आप ऐसे बात करेंगे, लेकिन आप स्ट्रेट यू विल नॉट बी लुकिंग इनटू द आई ऑफ द कैमरा। ये बहुत जरूरी है अगर आप चाहते हैं कि ऑडियंस को पता लगे आप कॉन्फिडेंट हैं, आप प्रिपेयर्ड हैं, राइट? उसके लिए जहां पे भी आपका कैमरा है, हियर ऑन योर स्क्रीन और ऑन योर फोन, आपको डायरेक्टली कैमरा की तरफ देखना है ड्यूरिंग योर परफॉर्मेंस। दैट विल मेक श्योर दैट यू कैन मेंटेन एन आई कांटेक्ट विद द जूरी मेंबर्स। दैट विल जस्ट क्रिएट एन इंस्टेंट कनेक्ट विद द जूरी मेंबर्स, राइट? किसी भी परफॉर्मेंस में कनेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किसी भी प्रेजेंटेशन में कनेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो ये आई कांटेक्ट आपको मेंटेन करना है, विच विल ऑटोमेटिकली बी डन इफ यू मेंटेन योर पोजीशन ऑन दिस screen. Now let's talk about your body language. Experts say that 55 to 65% of your communication depends on your body language. यानी कि जो भी आप communicate करना चाहते हैं, जो message आप देना चाहते हैं अपनी audience को, वो 60% आपके body language पे depend करता है. Just look at me, I'm just sitting in a very blank manner और मैं सिर्फ बोले जा रही हूँ, बट ना मेरा आई कांटेक्ट स्ट्रांग है, मेरे फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं है, और ना ही मैं अपने हैंड्स मूव कर रही हूँ. वुड यू बी इंटरेस्टेड इन नोइंग व्हाट आई एम सेइंग? विल यू बी एबल टू रिकॉल व्हाट आई सेड, राइट? तो रिटेंशन एंड अंडरस्टैंडिंग दोनों ही बहुत वीक होगा अगर मेरा बॉडी लैंग्वेज वीक है. नाउ व्हाट डज बॉडी लैंग्वेज कंप्राइज? योर बॉडी लैंग्वेज कंप्राइजेस, starting from here, your facial expression, your eye contact, your hand gestures, and of course coming down, your torso, your leg movement. But here we are only talking about virtual presence. अगर हम ऑफलाइन की बात करते तो आपके बॉडी लैंग्वेज में सारे मूवमेंट्स आते, लेकिन हम वर्चुअल की बात कर रहे हैं तो सिर्फ अपर हाफ में जो हमारे मूवमेंट्स हैं या जो एक्सप्रेशंस हैं वही हम कंसिडर करेंगे, primarily your facial expression. I mean, if I look at you, Poonam has been sitting since the beginning. She has been smiling, right? She's maintaining that constant smile on screen. So what do you think? She is radiating positivity. और अगर आप एक न्यूट्रल एक्सप्रेशन के साथ बैठे हैं या एक नेगेटिव एक्सप्रेशन के साथ बैठे हैं, then that will radiate negativity across the screen. And trust me when we say that a lot of people here, our team members here are noticing you. वो आपकी हर एक एक्टिविटी नोटिस कर रहे हैं. So why not just smile for them? Because अगर आप स्माइल करेंगे तो उनकी तरफ एक पॉजिटिविटी जाएगी. So it is very important that you smile whether the others are performing or you are performing. Let's just stay in the moment. Do not think that how am I going to perform. होता है ना, जब हम नर्वस होते हैं तो क्या होता है, हमारा कंट्रोल नहीं रहता हमारे एक्सप्रेशंस पे, एंड वी जस्ट थिंक अबाउट द नेक्स्ट मोमेंट कि जब मेरी टर्न आएगी तो मैं क्या करूंगी, एम आई प्रिपेयर्ड इनफ, क्या मेरी हील्स सही हैं, क्या मेरा ड्रेस सही लग रहा है, क्या मेरा मेकअप सही है. डू नॉट थिंक अबाउट एनीथिंग एट ऑल. अपनी प्रेपरेशन के टाइम आप 100% दीजिए, but when you are present here for your talent round, try to be present here in this moment and smile as much as you can. Secondly, eye contact we have already discussed, right? Even when we are giving an offline presentation और जब हम एक eye contact maintain करते हैं जूरी के साथ, it instantly gives them a cue that we are confident and we are prepared. चाहे हमारी preparation थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई हो, लेकिन अगर हम confident दिख रहे हैं तो हमारी performance पे उसका impact जरूर आएगा. Now, let's come to the final part of body language, hand gestures. I'm sure you keep meeting different people during the day.
सब अलग अलग तरीके से अपने हैंड्स को यूज करते हैं, राइट? सम पीपल दे मूव देयर हैंड्स अ लॉट, some people they use their hands in a very balanced manner while they are giving a presentation. So that is your call and that depends on your personality. आप किसी को भी कॉपी नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज्यादा हैंड जेस्चर्स कर रहा है तो आपको भी अपने हैंड्स बहुत ज्यादा यूज करने की जरूरत है प्रेजेंटेशन में. इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, but one thing is for sure, that if you are using appropriate hand gestures during your presentation, the understanding and the retention is going to be very very strong. I'm sure जैसे कि मैंने अभी आपको एक डेमो करके दिखाया था कि अगर मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, blank expression, I'm not using my hands, maybe you might just forget whatever I said in the next moment. लेकिन अगर मैं कोई मैसेज एक स्ट्रांगली आपको पहुंचाना चाहती हूँ और अगर मैं अपने हैंड्स यूज कर रही हूँ, आई एम जस्ट using my hands in a strong manner, then it would be communicated in an efficient way. You have to make sure कि आप अपने hands properly use करें. वो कैसे होगा? You will be using a mirror for your practice. सुनने में ऐसा लगता नहीं, तो सभी बोलते हैं मिरर यूज करो, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, but trust me, it is the most underrated form of practice. You should and you must be using a mirror. अपनी preparation के लिए आप 101% mirror से ही practice करें, and then you start talking about yourself. आपको अपने आप पता चल जाएगा that my hands are just going with the flow when I'm talking. और जब आप बिल्कुल प्रेपरेशन के साथ बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अपने आप आपके हैंड्स मूव होंगे. बट मेक श्योर कि बहुत ज्यादा हैंड मूवमेंट ना हो, अदरवाइज इट इज गोइंग टू गेट डिस्ट्रैक्टिंग फॉर द जूरी मेंबर्स. आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर हियर कि वर्चुअल प्रेजेंस में जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंटर्स हैं, इन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है. Along with these, you have to make sure that your background is not in chaos. आपका बैकग्राउंड बिल्कुल क्लीन होना चाहिए. Like I can see most of you are sitting across a plain wall. That's the best option, right? ज्यादा chaos में आप जाके बैठेंगे तो again वो distracting होता है, क्योंकि स्क्रीन पे आप हैं तो सारा फोकस आप ही पे होना चाहिए rather than your background. तो इसीलिए आप ट्राई कीजिए कि बिल्कुल प्लेन बैकग्राउंड के आगे बैठे हैं, एंड यू कैन ट्राई एंड कीप इट इन कॉन्ट्रास्ट व्हाटएवर यू वेयरिंग, स्पेसिफिकली टैलेंट राउंड्स में. आई अंडरस्टैंड कि ट्रेनिंग सेशंस में आप इतना ज्यादा कॉन्ट्रास्ट नहीं मेंटेन कर सकते, तो आपका जो ड्रेस का कलर है और आपका जो बैकग्राउंड का कलर है, यू कैन कीप इट इन कॉन्ट्रास्ट. उससे क्या होगा कि आप बैकग्राउंड में मिक्स नहीं होंगे, आप अलग से हमें दिखाई देंगे, आपका परफॉर्मेंस हम अलग से देख पाएंगे और जज कर पाएंगे. So another important pointer here, your background has to be clean and clear ताकि एक negative impact ना जाए आपकी audience पे, आपके jury members पे. Now, if there's anything that you could not understand, कुछ भी अगर आप पूछना चाहते हैं with respect to virtual presence, we can discuss it here and I'm open to your questions. Thank you. हेलो मैम. हाँ जी पिंकी बताइए. मुझे हैरी जी ने अभी अब बताया कि हील्स पहनकर ही करना है वॉक, रैंप वॉक. तो जी हील्स कैसी होनी चाहिए, क्या आप बताएंगे? जी देखिए, हील्स की स्पेसिफिकेशंस आपको भेजी जाएंगी, लेकिन पेंसिल हील्स जो होती हैं, स्टेलेटोस को हम पेंसिल हील्स बोलते हैं, तो उन्हीं में आपको चलना है. आप वेजेस या ब्लॉक हील्स नहीं पहनेंगे, क्योंकि रैंप वॉक के लिए सबसे एप्ट जो हील्स होती हैं वो स्टेलेटोस ही होती हैं. अगर आप ज्यादा हील्स में कंफर्टेबल नहीं है तो आप 3 इंच से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन 3 इंचेस से कम आप हील्स नहीं लेंगे. फॉर इंस्टेंस, अगर आपके पास कोई हील्स हैं जो कि 3 इंचेस की हैं और किसी भी कलर में हैं, आप उन्हीं में प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए. लेकिन अगर अभी आपके पास हील्स ही नहीं है, सो आई वुड सजेस्ट कि आप न्यूट्रल कलर्स से स्टार्ट करें. आप न्यूड, जैसे कि बेज होता है, ब्राउन होते हैं, ऐसे कलर की हील्स खरीद सकते हैं, या फिर आप ब्लैक में भी हील्स ले सकते हैं, जो कि आपको लॉन्ग टर्म में हेल्प भी करेंगी, एंड इट विल गो विद एनी अटायर दैट यू वेयर मोस्टली. अगर पेंसिल हील्स में ना करे और प्लेटफॉर्म हील में करे तो? नहीं, प्लेटफॉर्म हील्स में आप नहीं करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि आप फिनाले में अगर आते हैं इवेंट के लिए तो आप, क्योंकि अगर आपकी प्रैक्टिस ही प्लेटफॉर्म हील्स में होगी तो आप पेंसिल हील्स में वॉक कैसे करेंगे फिनाले में. सो इसमें आपके पास ऑप्शन नहीं है.
पेंसिल हील्स में ही करना है आपको प्रैक्टिस। ओके, सो हियर यू कैन सी द स्क्रीन, ये अभी स्क्रीन शेयर की गई है जिसमें कि आपको स्टेलेटोस दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ इसी टाइप की हील्स हमें पहननी है, लेकिन जो उनका हाइट है वो आप वेरी कर सकते हैं, 3 इंचेस, 5 इंचेस, 6 इंचेस। जो ज्यादा कंफर्टेबल है वो 6 इंचेस की हील भी ले सकता है। बट स्टार्टिंग आई वुड से कि अगर आपने कभी भी हील्स में वॉक नहीं किया है तो आप 3 इंचेस में ही इन्वेस्ट करें। और ये जो आप कलर्स देख रहे हैं ये बिल्कुल न्यूड कलर्स हैं, आप बेज में ही इन्वेस्ट करें अगर आप करना चाहते हैं तो, rather than going for some bright colors. And there's one more thing that I would like to add. So आगे प्लेटफॉर्म होना is a more safer consideration. अगर आपने बिल्कुल कभी कोई हील स्टेलेटोस नहीं पहने हैं, so ये जो पीछे की हील है, this is called स्टेलेटोस, जो बिल्कुल thin inches होते हैं। इसको आप 3 to 6 inches में वेरी कर सकते हैं, बट आगे अगर प्लेटफॉर्म होता है so it's considered more stable and more easy. So either But there what are I think is Harry कि अभी यहाँ पे ये लोग जो प्रेजेंट है अगर 3 इंचेस का ही लेते हैं तो उसमें प्लेटफॉर्म नहीं होगा। So you should not be getting confused कि मैं 3 इंच की ले रही हूँ और मुझे आगे प्लेटफॉर्म वाली चाहिए। ये उन्हीं हील्स में होता है जो ज्यादा होती हैं थोड़ी सी, एटलीस्ट 5 इंचेस जो हील्स होंगी उनमें आगे प्लेटफॉर्म होगा, 3 इंच में नहीं होगा। Could you show us some examples for 3 inches, Harry? Yeah, let me just see. मैम कभी पहनी नहीं है ना, इसीलिए थोड़ा पूछ रही थी जी, इसीलिए हम आपको बिल्कुल क्लैरिटी दे रहे हैं और पिक्चर्स के थ्रू दिखा रहे हैं। अभी 3 इंच की हील्स भी आपको दिखाएंगे ताकि आपको आइडिया हो कि मुझे किस में इन्वेस्ट करना है, राइट? बिकॉज ये एक ऐसी चीज है कि आप बार बार ये नहीं लेंगे, एक बार ले लेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म ये काम आएंगी, एटलीस्ट आपको फिनाले में तो ये काम आएंगी। अभी फिनाले की बात तो दूर की बात है, लेकिन अभी ट्राई करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे। फिनाले की बात बहुत दूर है, सीखेंगे अभी कि कर सकते हैं या नहीं कर सकते। So the one on my right is pretty much that you can take and invest into. These are exact 3 inches, और इसमें आपको बहुत easily, this is something that you can start with. I don't think इनमें इतना problem आएगा. It's going to be tricky, but then of course जब तक आप खुद से गिरोगे नहीं, खुद से संभलोगे नहीं, so it's not going to be worth it. So yeah. हरी मैम, जी ये बताइए। 3 इंच की है ना? जी। So वो आप जब वो देखकर ही डर लग रहा है क्योंकि कभी नहीं पहनी, जिंदगी में कभी नहीं पहनी। तो फिर पिंकी जी यही तो आप में और मुझ में फर्क होगा, आप मॉडल बनने वाली हैं, मैं टीम मेंबर हूँ, तो आप हील्स में चल पाओगे और मुझे नहीं आएगा, तो देन यू कैन से कि नहीं आएगा तो श्योर आएगा, प्रैक्टिस करेंगे तो जरूर आएगा, बिल्कुल आएगा। थोड़ा डर लग रहा है कि कैसे करेंगे। इसीलिए टैलेंट राउंड से बहुत पहले फर्स्ट स्टेप पे ही हमने ये इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है ताकि आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाए, बिकॉज जब वो डर निकल जाएगा तो बहुत ईजी हो जाएगा। और जो ये हील वाली चप्पल है वो हम अपने हिसाब से ही लेंगे ना, मतलब हील्स होनी चाहिए। जी, बस वही है कि एक सजेशन रहता है हमेशा ट्रेनर्स और जो भी टीम की तरफ से, वो यही होता है कि आपको हमेशा क्लासिक कलर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि वो मोर यूजेबल हो एंड ज्यादा काम आए आपके इन फ्यूचर। सो या all right, I think we can move forward. Let's move to the benefits of Excuse me, ma'am. जी जसदीप जी बताइए। Hi, ma'am. Hi, How are you? I am good, how are you? Good, ma'am. Actually, मैम मेरा क्वेश्चन था कि ओके अब आप कह रहे हो वी कैन स्टार्ट फ्रॉम 3 इंचेस, राइट मैम? अगर फिनाले तक पहुंच जाते हैं तो उसमें जैसे आप बता रहे हो कि 3 टैलेंट राउंड्स हैं, तो मैम उसमें कोई फिक्स्ड हाइट है हील्स की भी, इतनी हील्स पहन के रैंप वॉक 3 करना to है? 6 का ही वेरिएशन होता है जो ट्रेनर्स एक्सपेक्ट करते हैं। ऑफ कोर्स आप स्टार्ट 3 से करोगे देन आपका खुद का भी मन करेगा कि मे बी आई कैन डू बेटर, तो आप हो सकता है 5 में भी कंफर्टेबल हो जाओ। सो दैट कंप्लीटली डिपेंड्स, कुछ लोग वो चीज ओवरकम कर पाते हैं, कुछ नहीं। सो आई रियली कांट से, बट ऐसा नहीं है कि आपको मजबूरी में 6 ही पहनने पड़ेंगे, बट दिस इज समथिंग मिनिमम 3 ही रहेगा, 3 से 2.5 भी नहीं हो सकता है। The important part here, Jasdeep, is that you have to feel comfortable, right? जैसा कि अभी हैरी ने बोला कि जरूरी नहीं है आपको 6 ही लेनी है, अगर आप 3 भी ले रहे हो तो आपको कंफर्टेबल होना जरूरी है, क्योंकि अगर आप अपना वॉक कॉन्फिडेंटली नहीं कर पा रहे हो, अगर आप डिस्ट्रैक्टेड हो अपनी हील्स की वजह से, then that does not sort the matter for us.
3 लो, 4 लो, 5 लो, उससे आपके स्कोर पे या जूरी मेंबर्स आपको उस वजह से नहीं जज करने वाले हैं, लेकिन स्टेलेटोज में ही आप वॉक करेंगे और जिनमें आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हैं उन्हीं स्टेलेटोज में आप वॉक करेंगे। और अभी से आपको बोला जा रहा है कि अभी से आप प्रैक्टिस स्टार्ट करो, क्योंकि अगर आप एकदम न्यू फुटवेयर लेके आते हो, आप उनमें वॉक करोगे, तो जब आप अनकंफर्टेबल होगे तो इट विल बी विजिबल टू अस, राइट? आप अपना 100% नहीं दे पाओगे वॉक में, लेकिन आप ग्रेजुअली जब प्रैक्टिस करोगे, रोज 10-15 मिनट अगर आप प्रैक्टिस करते हो, तो धीरे धीरे आप इतने कंफर्टेबल हो जाओगे उन हील्स में कि जब आप वॉक करोगे इट विल जस्ट बी अ कैजुअल वॉक फॉर यू, राइट? Okay. कुछ टेक्निकलिटीज आपने सीखी और इधर से आपने फुटवेयर पहने एंड देन यू जस्ट गुड टू गो, राइट? ओके मैम, देन अभी मैं लेके आऊंगी। ओके, थैंक यू। क्वेश्चन है। जी जी लतिका जी, आपका क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया है ड्रेसेस वाला। इतनी डिटेल्स और टेक्निकलिटीज में अभी हम वक्त के साथ जाएंगे। आप लोग आज ही सारे सवाल शुरू कर दोगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, सारी शाम यही बीत जाएगी। मैम बस लास्ट क्वेश्चन है। मैम बस लास्ट क्वेश्चन है, जो आपने वो क्वेश्चंस वाला पार्ट बताया कि आपको वो कुछ भी पूछ सकते हैं रिलेटेड टू आवर जनरल नॉलेज और रिलेटेड टू द थिंग्स। नॉट जनरल नॉलेज जसदीप जी, आपकी प्रेपरेशन। ओके, आपकी प्रेपरेशन। जी जी, जनरल नॉलेज नहीं पूछेंगे, दे वोंट आस्क यू द प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, किसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ओके ओके, थैंक यू। All right, thank you so much. Let's move forward to the next part of this session, which is the benefits of the platform. We have gone through these benefits quite a while back, but अब ये ज़्यादा matter करते हैं because अब आपको ये benefits short मिलने वाले हैं, and you should know what all you are going to receive. So अब आप एक अलग मोटिव के साथ इन्हें सुनोगे। आई एम श्योर यू विल हैव अ डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स इट, बिकॉज ऑडिशन में थोड़ा एक डर होता है, पता नहीं हम क्लियर करेंगे, इफ वी आर गोना गेट ऑल ऑफ दिस और नॉट, बट नाउ यू डन इट ऑल, एंड नाउ आई वुड रिक्वेस्ट द अदर कोर टीम मेंबर ऑफ फॉरएवर स्टार इंडिया, Jaya, to take over and talk about these benefits. Thank you, Harry. And first of all, very congratulations to everybody. I've seen a lot of faces from the audition who were nervous and they are doing really well at the screen today. And definitely, काफी सारी चीजें आपको आज पता चली है, confuse नहीं होना है. The these benefits, these talent rounds, the training session, everything will be refreshed every time. जब भी आपका next session होगा, उससे पहले आपकी memory refresh कर दी जाएगी. So nothing is to be worried and confused. Let's talk about the benefits. ये सारे आप I understand ये सारे benefits आप पहले सुन चुके हैं, but again, as I've told you, refresh your memory so that you can understand what you are getting. So when you have completed your participation, you have become a lifetime member of Forever Star India. So lifetime membership का मतलब है your profile is going to be live on Forever Star India's website for the lifetime, not just for this year. ऐसा नहीं है कि जसदीप की प्रोफाइल, पिंकी जी की प्रोफाइल सिर्फ इस साल के लिए लाइव रहने वाली है. They will be live. If you see your profile and search in community members वेबसाइट पे जो ऑप्शन है, वहां से आप किसी की भी प्रोफाइल जो है वो एक्सेस कर सकते हो. लाइक यू कैन सी द प्रोफाइल. सो ये प्रोफाइल वहां पे तब जाती है व्हेन इट इज अपडेटेड टू 90 to 100%. अगर किसी if you have not updated your profile to 90 to 100%, make sure you log in into the profile and go to edit profile section, and that's how you will be able to update these profiles. So basically updation is not just for the verified member, it is also going to give you a lot of benefits. आप अपना social media update करते हैं, now you have come in this page with a motive. So ये profile will be in impression of your personality, I'll say, जिससे कि आप अपनी प्रोफाइल दूसरों को दिखा सकते हैं. व्हाट इज देयर, वहां पे बहुत सारे सेक्शंस अवेलेबल है. डिस्क्रिप्शन इज अवेलेबल, पोर्टफोलियो पिक्चर लाइक मिड लेंथ, फुल लेंथ, हाफ लेंथ, व्हाटएवर पिक्चर्स यू हैव अपडेट, यू कैन अपडेट देयर. अचीवमेंट्स, अब ये नहीं है कि अचीवमेंट सिर्फ आप इसी फील्ड से रिलेटेड वहां अपडेट करेंगे. देयर इज अ बिग सेक्शन. तो आपको लगता है फ्रॉम योर स्कूल टाइम टिल नाउ, व्हाटएवर यू थिंक यू हैव अचीव्ड इन लाइफ, यू कैन अपडेट देयर in the written format, in the picture format also, like certification and everything. So that is a very main part, because again, जैसे कि हमने ऑडिशन में भी बात की थी, देयर इज गोइंग टू बी अ यूनिक आइडेंटिटी. बहुत सारे लोग यहाँ पे अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए आए हैं, जो कि आपको मिलने वाली है गूगल के थ्रू. As Harry already mentioned and we have already mentioned that Google ranking is gonna give you a lot global networking also. So ये जो profiles है, these profiles are going to rank over Google in top.
अगर आप लोगों की प्रोफाइल अभी तक गूगल पे रैंक नहीं कर रही है, प्रोबेबली दे विल बी देयर इन 10 to 12 days. बस इज जस्ट यू हैव टू अपडेट. वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड, अगर किसी से प्रोफाइल अपडेट नहीं होती है, just again do not get worried. Contact your account managers. जो नहीं आपसे अपडेट हो रहा है, you can kindly send us what is the error you are getting. So that's how we can process with the updation part. And Google ranking किसे नहीं कहना है, definitely 10 to 12 days में आप participation के celebrities बनने वाले हो. When you'll be sharing your profile link over Google, if you see your profile link, please start sharing it. And also, as I've told you कि ये आपका एक social media platform है, so let's connect it to the other social media platform of Forever Star India. I think आप लोगों ने काफी research अभी तक कर ली होगी, नहीं की है तो make sure कि आप Forever Star India के handles Facebook, Instagram को आप एक डेली आप फॉलो कर रहे हो और उन्हें चेक कर रहे हो, उन पे अपडेट कर रहे हो. ये वी हैव शेयर्ड द हैंडल्स ऑलरेडी. फॉरएवर स्टार इंडिया का ऐप भी अभी अवेलेबल है, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम द प्ले स्टोर. एंड यू हैव टू मेक श्योर, अभी कुछ टाइम बाद में व्हेन यू आर गोइंग टू बी देयर, विनर बनने वाले हैं आप सिटी के, स्टेट के, सो पीपल विल लुक आफ्टर योर सोशल मीडिया. आपने बहुत सारे लोगों की जिनकी गूगल रैंकिंग देखी होगी ड्यूरिंग द ऑडिशन, so definitely आपने उनको सोशल मीडिया पे जाके सर्च किया होगा. You have seen how they have maintained their profile, right? Similar way आपको भी अपनी प्रोफाइल सोशल मीडिया पे मेंटेन करनी है. विनर बनने तक का वेट नहीं करना है, एक बेस सेट करना है आपको, so that people know what is there. आप विनर क्यों बने, how you have put up your journey. So ये जर्नी आपको वहां पे शो करनी है by updating your social media. And definitely whatever content you are creating on the social media, you have to tag Forever Star India so that we can repost your stories, and these stories will be reaching to a lot other peoples. Social media से ही we see the networking part. आप किसी और की प्रोफाइल देखेंगे, you will be you impressed. आप उनकी प्रोफाइल देख के अपलोड कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, whatever you feel. Similarly, आपके भी कंटेंट को देख के people will see, okay, there is someone who is so much active on the social media, because there will be a marking on social media as well. So you have to be a little active. Just one thing, if you're tagging Forever Star India on official handles, make sure your account is public, because private account की stories we cannot repost. So definitely you should have a public account. And आप अपनी अलग पहचान बनाने के लिए आए हो तो private रखने का कोई logic नहीं है, right? So make sure you अपनी profile जो है आप पब्लिक करें. किसी को प्रॉब्लम है अपने अकाउंट को अलग से वापस पब्लिक करने के लिए, आप दूसरा अकाउंट बना सकते हैं. Your celebrity fan page, I'll say. So start maintaining that. Apart from that, I'll talk about the other benefits, which will be your certification. Definitely काफी लोगों को मिल गया होगा, काफी लोगों के पास में आने वाला है. There is a beautifully designed certificate and sash which will be delivered to you. And definitely the training and grooming part, that is the key point which will take you to the finale. So attend each and every session on given times, and whenever you have some kind of emergency, you can update us. Let's talk about the finale. ये training and grooming and talent rounds के बाद में we are going to be there in the finale. How it is going to happen, as you already know, 300 winners were created last year. We made a world record, and this year there will be certain faces, some faces from this screen, definitely. So the finale is going to be happening in the month of September for city and state winners. Then selected state winners will be coming for national winnings crowning, which will be held in the month of December. So the venue will be shared with you very soon. We are still deciding for the location, and city and state winners location will be at Hotel Marriott Jaipur, Rajasthan, the Pink City. I understand आप काफी लोगों ने तो घूम लिया होगा Pink City. There is again a chance for you to see us in the finale. So yeah, that is all from me. The benefits and the details about finale. I hope to see a lot of you in the upcoming sessions, and be prepared with the virtual presentation. Thank you so much. Thank you, Jaya. Thank you so much. And that brings us to the pretty much end of the session. मैंने Forever Star India के social media details chat box में share कर दिए हैं. And now I'll take Kirti ma'am and Jaya's leave so that I can have a final interaction with you all. Just a second.